थ्योरम है हमारी, इफ एफ एंड जी आर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन on AB, then their sum F plus G product F into G and difference F minus G are function of bounded variation. Proof. Given F and G be function of bounded variation on A comma B, then let x0 x1 x2 बराबर B any partition of AB. So variation of F comma P बराबर समेशन mod FXR minus FXR minus 1 G comma P बराबर समेशन GXR minus GXR minus 1। देखिए अगर हम समेशन को स्टार्ट करते हैं जीरो से, यहाँ लेते हैं -1, यहाँ लेते हैं XR plus 1, यहाँ लेते हैं XR। अगर समेशन को 1 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक एंटर लेते हैं GXR minus GXR minus 1। Since F and G be function of bounded variation, so there exist K1 and K2 such that variation of F comma P is less equal to K1 and variation of less than K2. And F and G be also bounded on AB, so there exist M1 and M2 such that mod Fx less equal to M1 and mod Gx less equal to, for all x belongs to AB के लिए। Now variation of F plus G comma P बराबर R equal to 1 to N mod F plus G XR minus F plus G XR minus 1। Summation R equal to 1 to N mod FXR plus GXR minus FXR minus 1 GXR minus 1।
r equal to 1 to 1 mod fxr minus fxr minus 1 plus gxr minus gxr minus 1 less equal to summation r equal to 1 to 1 mod fxr minus fxr minus 1 plus summation r equal to 1 to 1 mod gxr minus gxr minus 1 variation of f plus g comma p लेस इक्वल टू हो जाएगा वेरिएशन ऑफ एफ कॉमा पी प्लस वेरिएशन ऑफ जी कॉमा पी लेस देन के वन प्लस के टू। तो वेरिएशन ऑफ एफ प्लस जी कॉमा पी लेस देन के वन प्लस के टू बराबर फाइनाइट वेल सो एफ प्लस जी इज ए फंक्शन ऑफ bounded variation. Now f minus gp बराबर r equal to 1 to n mod f minus gxr f minus g xr minus 1 r equal to 1 to 1 mod fxr minus gxr fxr minus 1 plus gxr minus 1 summation r equal to 1 to 1 mod fxr minus fxr minus 1 minus gxr minus gxr minus 1 less equal to summation r equal to 1 to 1 mod fxr r minus 1 plus summation mod gxr minus gxr minus 1 less than k1 plus k2 variation of f comma p plus variation of g comma p less than k1 plus k2 बराबर finite value. तो implies f minus g is a function of bounded variation. Now variation of f g comma p बराबर summation r equal to 1 to 1 f g xr minus f g xr minus 1 fxr gxr minus fxr gxr minus 1 plus fxr gxr minus 1 minus fxr minus 1 gxr minus 1 mod fxr gxr minus gxr minus 1 plus gxr minus 1 fxr minus gxr
variation of r equal to 1 to n m1 mod gxr minus gxr minus 1. So r equal to 1 to n m2 fxr minus fxr minus 1 बराबर m1 into variation of g comma p plus m2 variation of f comma p is less than m1 k2 plus बराबर finite value. Implies variation of fg comma p is less than finite value. Implies fg is of function of is a function of bounded variation. ये करें इसमें कि एफ और जी हमारे फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन के, तो हमें प्रूव करना है एफ प्लस जी एफ इंटू जी एफ माइनस जी भी फंक्शन होंगे बाउंडेड वेरिएशन के। अगर एफ और जी हमारे फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन के, तो किसी पार्टीशन पी के लिए ये दो कंडीशन होंगे वेरिएशन के, क्योंकि वेरिएशन क्या बाउंडेड है तो k1 k2 ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, इन दोनों का मान लेस इक्वल टू k1 k2 के होगा। अब एफ और जी बाउंडेड भी होंगे जब बाउंडेड वेरिएशन के है तो m1 m2 ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि एफ एक्स लेस इक्वल टू 1 होगा, जी एक्स लेस इक्वल टू m2 के होगा। अब वी एफ प्लस जी पी ले लिया हमने, अलग अलग खोल दिया, इनको अलग अलग कर लिया, एफ वाले एक साथ जी वाले एक साथ, मोड को अलग लगा देंगे, k1 प्लस k2 आ जाएगा लेस इक्वल टू, तो बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा। माइनस जी करेंगे तो सेम प्लस की तरह अलग अलग करेंगे, अभी जी वाला में से माइनस कॉमन ले लेंगे, मोड को फिर खोल लेंगे तो वे k1 प्लस k2 आ जाएगा, फिर बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा। इन प्रोडक्ट के अंदर हमें ध्यान रखना है, इसके बीच में हमें ये घटाना है, ये जोड़ना है, इन दोनों में से जी एक्स आर माइनस वन एफ एक्स आर कॉमन, इन दोनों में से जी एक्स आर माइनस वन कॉमन, अलग अलग मोड लगा लेंगे, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स तो बाउंडेड फंक्शन है, तो ये m1 हो जाएगा लेस देन ये m2 हो जाएगा, इन्हें बाहर निकाल लेंगे, अब वो वेरिएशन ऑफ जी का हो जाएगा, वेरिएशन ऑफ एफ का हो जाएगा, ठीक है, एक k2 हो जाएगा, ये k1 हो जाएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगी अभी, तो एफ जी भी क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के हो जाएगा। अगली थ्योरम में पास में कि एफ is a function of bounded variation on AB, then then 1 upon f, then if कंडीशन भी है साथ में,
there exist k greater than 0 such that mod fx is greater equal to k for all x belongs to ab, then 1 upon f is a function of bounded variation. हमें 1 अपॉन एफ को बाउंडेड वेरिएशन में प्रूव करना. Since f is a function of so there exists k1 greater than 0 such that variation of f comma g is less than k, and also given mod fx is greater equal to k. Now variation of 1 upon f comma p बराबर summation r equal to 1 to n mod 1 upon f xr minus 1 r equal to 1 to 1 mod 1 upon fxr minus 1 upon fxr minus 1 summation r equal to 1 to 1 mod fxr minus 1 minus fxr बटे fxr into fxr minus 1 r equal to 1 to 1 mod fxr minus 1 बटे mod fxr into fxr minus 1 for all x belongs to ab के लिए ये कंडीशन. fxr minus k into k. One upon f comma p is less equal to 1 upon k square r equal to 1 to n mod fxr minus 1 1 upon k square variation f comma p 1 upon k square into k1 variation of 1 upon f comma p less equal to k1 upon k square finite value implies 1 upon f is a function of bounded variation. Sure. If f and g be a function of bounded variation, then f upon g be also a function of variation where gx not equal to 0. Proof. Given f and g be function of implies
fn to 1 upon gp also function of bounded variation f into 1 upon g be also a function of bounded variation implies f upon gb function of बाउंडेड वेरिएशन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझिए कि एफ हमें दिया हुआ फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन का, तो पी हमने कोई पार्टीशन ले लिया ए बी का, तो वेरिएशन ऑफ एफ टू पी क्या होगा, ये होगा। अब एफ क्योंकि फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन, तो कोई केवन ऐसे एग्जिस्ट कराएगा कि वेरिएशन ऑफ एफ टू पी क्या होगा, लेस देन केवन होगा। अब दिया हुआ मॉड एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू के क्वेश्चन के अंदर ही वेरिएशन है 1 अपॉन एफ कॉमा पी निकाला हमने, खोल लिया इन्हें, एलसीएम ले लिया, मॉडल लगा देंगे सब पे, इसमें से माइनस को मिलने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी लेस इक्वल टू के, ये भी लेस इक्वल टू के, तो के इसका बाहर आ जाएगा। वेरिएशन ऑफ एफ टू पी बन गया ये, इसका मान क्या रख दिया, लेस देन के वन, तो ये हो गया हमारे पास लेस देन के वन, तो हो गया लेस देन के वन अपॉन के स्क्वायर। कैसे होगी, फाइनाइट वैल्यू, इसका मतलब 1 अपॉन एफ क्या होगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का होगा। अगर हमें प्रूव करना है एफ अपॉन जी को बाउंडेड वेरिएशन का, जहां जी नॉट इक्वल टू जीरो है, एफ और जी अगर बाउंडेड वेरिएशन के हैं तो जी है तो 1 अपॉन जी बाउंडेड वेरिएशन का होगा। अभी हमने प्रूव किया प्रोडक्ट जो होता है वो भी बाउंडेड वेरिएशन होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट बाउंडेड वेरिएशन का होगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एफ अपॉन जी बन जाएगा। जो आप थ्योरम कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो लिख रहे हैं अब हम, है तो ये भी इंपॉर्टेंट ही सम प्रोडक्ट वाली भी। एवरी एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस फंक्शन function is of bounded variation. सबसे ज्यादा बार रिपीटेड थ्योरम है ये हमारी इस चैप्टर के अंदर। Let f be absolutely continuous function on a closed interval AB. So we can choose delta greater than 0 such that summation k equal to 1 to n mod fbk minus fak less than 1
समेशन के इक्वल टू 1 to n बी के माइनस ए के लेस देन वेयर ए बराबर A1 लेस देन B1 AN लेस देन BN बराबर B। अगेन डिवाइड द क्लोज्ड इंटरवल AB by mean of points A बराबर C0 C1 C2 C3 तो बराबर B in N0 part such that CK plus 1 minus CK less than 10. So for CK comma CK plus 1 के लिए summation mod f xi plus 1 minus f xi is less than 1 where xi plus 1 comma xi belong कर रहा है CK comma CK plus 1 implies variation of CK से CK plus 1 f is less than 1. Now variation of A to BF बराबर variation of C0 से C1F प्लस variation of C2F C2 से C3F प्लस एंड सो ऑन CK से CK plus 1F प्लस एंड सो ऑन। N0 terms 1 plus 1 plus 1 plus and so on N0 terms बराबर N0 less equal to N0 less than infinity implies f is a function of bounded variation। देखिए f हमने मान लिया एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लो इंटरवल के अंदर, तो ये एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी हमने इसमें, ठीक है, जहां पर a और b में ये रिलेशन होता है। हमने डिवाइड किया बाउंड्री वेरिएशन दिखाने के लिए ए बी इंटरवल को छोटे छोटे पार्टों में C0 C1 C2 CN0, ठीक है, इन N0 पार्ट सच दैट CK plus 1 minus CK लेस देन डेल्टा हो। तो फॉर CK और CK plus 1 के लिए इस समेशन का मान निकालेंगे लेस देन 1 आएगा इस वाले डेफिनेशन से। ये क्या बनेगा वेरिएशन ऑफ CK से CK plus 1 F कितना आ गया लेस इक्वल टू 1। इसका जो सुप्रीम होता है ना वो वेरिएशन होता है, तो सुप्रीम लेंगे तो इसे इक्वल टू भी लगा दिया हमने इसलिए। अब वेरिएशन ऑफ A to B निकालना है, जो हमने पार्ट किए थे इसके छोटे छोटे ये वाले, इन पार्टों में तोड़ लिया हमने C0 C1 C1 C2 C2 C3 कहां तक तोड़ेंगे N0 तक तोड़ लेंगे इसको। तो 1 plus 1 plus 1 कम तक जाएगा N0 तक जाएगा, तो कितनी टर्म आ जाएगी वैल्यू N0
तो वेरिएशन ऑफ ए टू बी एफ क्या है, लेस इक्वल टू एन जीरो क्या लेस देन इन्फिनिटी, तो वेरिएशन ए टू बी क्या हो गया, लेस देन इन्फिनिटी। लेस देन इन्फिनिटी तो फाइनाइट वैल्यू होती है, तो एफ कैसा होगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का। तो 7.5 में आएगी ना? हाँ जी 7.5 नंबर।